Hello dear students, welcome you all in our biology virtual class. Today is my fourth lecture on chapter 2, that is the biological classification. Today we are going to discuss our third kingdom, that is the fungi. In previous classes we already discussed the kingdom, that is Monera and Protista, their division, characteristics, features, along with their examples. Today we only discuss our third kingdom, that is the fungi. So fungi means, it's coming from Latin word which means the mushroom. Okay, so fungi or fungus is a Latin word which means mushroom, and the study of fungi is called the mycology. The study of fungi is called the mycology. The Greek word, that is the myx, means for the mushroom. So generally हम लोग मार्केट में जो मशरूम हम लोग को मिलता है, edible mushroom, all are categorized under the kingdom fungi. So regarding fungi, we have to know some important terms. Okay, let's start with the first term, that is called the hyphae. What is hyphae? The fungal body generally uni or multicellular which form much branched filaments. Now a single filament is called the hyphae. मतलब क्या हो गया कोई भी फंगल बॉडी यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, which form a much branched filaments. बहुत सारा फिलामेंट्स एक साथ मिलके एक फंगल बॉडी बना सकता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो. Now the single filament is called the hyphae. And the important characteristic feature of the hyphae is that it shows the apical growth. It shows the apical growth. That's why it can grow easily. As we see in case of plant, there is a apical meristematic tissue which is responsible for their growth. Like that purpose, hyphae shows the same characteristics feature. The hyphae generally responsible for the apical growth. Next term is the mycelium. What is mycelium? Large number of hyphae representing a mass of interwoven filament constitute the mycelium. Means यहाँ पे बहुत सारा hyphae एक दूसरे के साथ एक interwoven filament स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इंटरवोवन फिलामेंट स्ट्रक्चर मतलब होता है, मान लो एक फल भी एक फिलामेंट है, ये एक है, बहुत सारा हाइफी एक दूसरे के साथ एक इंटरवोवन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, ये इंटरवोवन स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ बोलते हैं एक माइसेलियम. ठीक है, अब ये माइसेलियम का इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, ये माइसेलियम दो टाइप का हो सकता है. ये माइसेलियम जो है दो टाइप का हो सकता है. एक हो सकता है एसेप्टेट या नॉन सेप्टेट या पोइनोसाइटिक, और एक होता है सेप्टेट हाइफी. So what is aseptate या non-septate hyphae? Means in unicellular fungi, cell is highly branched with indefinite number of nuclei. Such multinucleate cell is known as the aseptate hyphae. तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है. ठीक है, तो इसका पूरा बॉडी में कोई पार्टीशन नहीं है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल के अंदर कोई पार्टीशन नहीं रहने की वजह से बहुत सारा न्यूक्लियस है. ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है. तो एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, बहुत सारा न्यूक्लियस है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मल्टी न्यूक्लिएट सेल. So in unicellular fungi, when cell is highly branched with indefinite number of nuclei, such multinucleate cell is known as the aseptate hyphae. अब ये aseptate hyphae कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलता है? एग्जाम्पल याद रखना, राइजोपस और म्यूकर. राइजोपस और म्यूकर, इसमें हम लोगों को aseptate hyphae दिखने को मिलता है. साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना मस्ट है. ये हो गया aseptate. aseptate मतलब कोई सेप्टा नहीं रहेगा. अब डिफरेंस देखो सेप्टेट के साथ क्या होता है. सेप्टेट हाइफी में when multicellular hyphae contain a transverse wall having a pore is known as septate hyphae. तो ये डायग्राम में क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी ब्रांच्ड सिस्टम है बट ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है. क्यों मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है?
ये इंडिविजुअल एक सेल है, ये इंडिविजुअल एक सेल है, ऐसा करके यहाँ पे बहुत सारा सेल है, ठीक है। सो ईच सेल कॉन्टेन्स सिंगल न्यूक्लियस, मतलब ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो गया, ठीक है। तो एक सेल दूसरे सेल से कैसे डिफरेंशिएशन है, एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म किया, यहाँ पे देखो एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म किया, पर ये वॉल के अंदर एक छोटा सा पोर है, जिस पोर के थ्रू से सेलुलर मटेरियल आपस में एक्सचेंज करता है। सो व्हेन अ मल्टीसेलुलर हाइपी contain a transverse wall having a pore is known as the septate hyphae। ये कहाँ पे मिलता है, एगारिकस, फ्यूजरियम, ये जो एग्जांपल है इसमें हम लोगों को सेप्टेट हाइपी देखने को मिलता है, क्योंकि ये एसेप्टेट और सेप्टेट ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन करने के लिए जाएंगे तो ये सेप्टेट और एसेप्टेट के बेसिस में हम लोग उसे क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। ये छोड़ के फंजाई का और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, like fungi are closely related to animals than plant। एक कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, why fungi is closely related to animal than plant, जबकि अगर किंगडम की हिसाब से अगर देखा जाए, पहले था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड देन एनिमलिया। तो प्लांटी से पहले था फंजाई किंगडम, पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है जनरली, why fungi is closely related to the animal than the plant। इसका आंसर क्या हो सकता है, जो फंजाई होता है, फंजाई आर जनरली हेट्रोट्रॉफ इन नेचर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नॉट ऑटोट्रॉफ लाइक प्लांट। प्लांट में जो ऑटोट्रॉफ नेचर होता है वो ऑटोट्रॉफ नेचर फंजाई में नहीं मिलता है। फंजाई आर जनरली हेट्रोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ के अंदर क्या होता है, वो आर द आइदर सैप्रोफाइटिक और द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे शो करता है, ठीक है, जैसे एनिमल करता है, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। साथ साथ में और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फंजाई का जो सेल वॉल होता है, फंजाई का सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनता है। जो प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, पर ये जो फंजाई है, फंजाई का सेल वॉल बनता है काइटिन से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, एक होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज द हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर एंड द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ फंजाई इज मेड अप बाय काइटिन इन प्लेस ऑफ सेलुलोज, जो कि ना प्लांट में होता है। तो प्लांट से दोनों दिख से ही डिफर करता है, दैट्स व्हाई फंजाई आर रिगार्डिंग एज क्लोजली रिलेटेड टू द एनिमल रादर देन प्लांट। नेक्स्ट वन, द रिप्रोडक्शन टाइप, द रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरीके से ही वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फंजाई डेवलप्स हैप्लॉइड स्पोर व्हिच अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल। मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई डेवलप्स द हैप्लॉइड स्पोर, एक हैप्लॉइड स्पोर बनता है, ठीक है। वो हैप्लॉइड स्पोर व्हिच अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म द मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल। द मेल गैमेटेंजियम इज कॉल्ड द एंथ्रेडियम। द मेल गैमेटेंजियम, गैमेटेंजियम मतलब क्या होता है, गैमेटेंजियम मतलब होता है इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द गैमेट विल डेवलप। सो गैमेट जहां पे डेवलप होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गैमेटेंजियम। So the male gamentangium in fungi is called the antheridium and the female gamentangium is called the oogonium, ठीक है। और भी फीचर्स है, like parasitic fungi obtain their food from the host body through a knob-like structure which is called the hostoria। मतलब जो पैरासाइटिक फंजाई मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है दोज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग बॉडी, ठीक है। अगर अदर लिविंग बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उस डिपेंडेंसी के वजह होता है कि वो अपना खाना को अपटेक कर सके। तो उसके लिए फंजाई ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है हॉस्टोरिया, जिसके थ्रू से ये पर्टिकुलर प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन अपटेक करता है। ये होता है पैरासाइटिक फंजाई का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे शुड पॉजेस द हॉस्टोरिया। नेक्स्ट वन इज द फंजाई इंटरेक्ट्स विथ अदर ऑर्गेनिज्म आइदर फॉर्मिंग बेनिफिशियल और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, बहुत सारा केस में दिखाया गया है कि फंजाई का बहुत सारा स्पीसीज ऐसा है जो कि ना अदर ऑर्गेनिज्म के साथ एक बेनिफिशियल या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के अंदर रहता है। ऐसे ही दो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक होता है लीचेंस, एक होता है लीचेंस। तो लीचेंस क्या होता है,
lichens are generally formed by the association between the fungi and algae. ठीक है, फंजाई और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, जो कि ना लाइकेन या लीचेंस. ये लीचेंस क्या होता है, हम लोग अगर देखा होगा कि आर.एच. व्हाइटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक में हम लोग डिस्कस किया था. आर.एच. व्हाइटेकर ने लीचेंस को कोई एक अलग किंगडम में नहीं डाला था. जैसे वायरस को कहीं पे नहीं डाला था, वैसे ही लीचेंस को कोई भी किंगडम के अंदर उसने प्लेस नहीं किया था. जबकि लीचेंस होता है एक फंगल और एल्गल एसोसिएशन. ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन. जनरली कहां पे मिलता है लीचेंस, हम लोग को बहुत देखने को मिलता है. जो हम लोग रोड साइड जो प्लांट होता है ना, उस प्लांट में देखना बहुत सारा व्हाइट पैचेस होता है. जो वो व्हाइट पैचेस हम लोग देखते हैं ना, दिस व्हाइट पैचेस आर नथिंग बट ए लीचेंस व्हिच आर द फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन. ठीक है, तो फंगल और एल्गल एसोसिएशन में फंगल पार्ट का एक नाम होता है और एल्गल पार्ट का एक नाम होता है. फंगल पार्ट का नाम होता है माइकोबियंट. ठीक है, और एल्गल पार्ट का नाम होता है फाइकोबियंट. ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कि फंगल पार्ट और एल्गल पार्ट का नाम क्या होता है. तो लीचेंस का मतलब फंजाई और एल्गी बनता है. फंगल पार्ट का नाम होता है फाइकोबियंट और एल्गल पार्ट का नाम होता है फाइकोबियंट. नेक्स्ट और एक एग्जांपल होता है फंजाई का म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का, जिसका नाम होता है माइकोराइजा. अब ये माइकोराइजा जनरली क्या होता है, माइकोराइजा आर द फंजाई व्हेन ग्रो अलोंग विथ प्लांट रूट्स. जनरली इट्स ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि फंजाई और प्लांट दोनों का एक एसोसिएशन बनता है, जो भी एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ही होता है. ठीक है, ऐसा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को जब फंजाई और प्लांट के साथ होगा तब उसका नाम हो जाएगा माइकोराइजा. या जनरली प्लांट का रूट पार्ट के साथ एसोसिएशन करता है. जनरली ये माइकोराइजा दो टाइप का होता है. एक होता है एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, और एक होता है एक्टोमाइकोराइजा. ठीक है, एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, एंडोमाइकोराइजा में होता है फंजाई ग्रो विद इन द रूट, विद इन द रूट मतलब रूट के अंदर वो ग्रो करता है. और एक्टो में क्या होता है, द सरफेस ऑफ रूट, आउटर सरफेस. रूट का आउटर सरफेस में ग्रो करता है जब होगा एक्टोमाइकोराइजा, और एंडोमाइकोराइजा होगा विद इन द रूट. ठीक है, सो माइकोराइजा मींस इट्स द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द प्लांट रूट्स. जनरली प्लांट्स आर द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. ठीक है, ये कुछ हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई. नाउ वी हैव टू नो मोर some important terminology regarding the kingdom fungi. उसके अंदर फर्स्ट एक टर्म आता है जिसका नाम होता है होमोथेलिक और होमोथेलिज्म. होमोथेलिक और होमोथेलिज्म, और एक होता है हेटेरोथेलिक और हेटेरोथेलिज्म. होमोथेलिज्म मतलब होता है when gametes found on the same mycelium. See, as we discussed earlier, there is a male or female gamete. क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है. तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसका मतलब है it have to produce individually male and female gamete. Now, if the male and female gamete both are produced on a same mycelium, then this is called homothelism, and such fungal species are called the homothelic. दोनों में डिफरेंस है. होमोथेलिक मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्पीसीज को कहा जा रहा है जिस स्पीसीज शो करता है कि उसके एक ही माइसिलियम के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट ही रहेगा, तब जाके उसे कहेंगे हम लोग होमोथेलिज्म, एंड स्पीसीज को बोलेंगे होमोथेलिक. ठीक है, सो हेटेरोथेलिक और हेटेरोथेलिज्म में क्या होगा, व्हेन बोथ द गैमेट प्रोड्यूस इन द डिफरेंट माइसिलियम. होमो मतलब सेम और हेटेरो मतलब दोनों अलग. ठीक है, सो हेटेरोथेलिज्म मींस या heterothelic fungi means gametes are formed on the different mycelium is called the heterothelism, and the fungal species are called the heterothelic
सेम है, सिर्फ होमो याद रखना, होमो मतलब होता है कि एक ही माइसिलियम के अंदर होगा, और हेटेरो मतलब होगा दो अलग अलग माइसिलियम में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग गैमेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म होता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी मींस द फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक हाइपी। जो हाइपी हम लोग डिस्कस किया था ना, कभी कभार क्या होता है, ये दो हाइपी, मान लो ये एक हाइपी है और ये एक हाइपी है, ये दो हाइपी का जो आपस में जो फ्यूजन होता है ना, ये आपस में जो फ्यूजन हो रहा है, इस फ्यूजन को हम लोग कह सकते हैं सोमैटोगैमी। नेक्स्ट एक टर्म आता है प्लाज्मोगैमेटिक कपलेशन। Plasmagammetic copulation means when the fusion between two motile gametes, दो मोटाइल गैमेट्स के अंदर जब फ्यूजन हो रहा है ना, उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमेटिक कपलेशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल मतलब क्या होगा, यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे गैमेटेंजियम दोनों एक दूसरे के पास में आ रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, here the two gametangia are close to each other but do not fuse. Okay, so the non-motile male gamete passes its nucleus into female gamete through the fertilization tube. तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा था गैमेटेंजिया के अंदर, वो था सब नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल मतलब दे कैन नॉट मूव। फॉर दैट पर्पस the gametangia are close to each other but doesn't fuse. In that case, the non-motile male gamete passes its nucleus into the female through the fertilization tube. ऐसा रिप्रोडक्शन जब मिलेगा तब उसे हम लोग कहेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, फ्यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एक टर्म आता है गैमेटेंजियल कपलेशन। कपलेशन मतलब फ्यूजन बिटवीन द टू गैमेटेंजिया। कपलेशन मतलब ही होता है फ्यूजन। तो गैमेटेंजियल कपलेशन मतलब जब दो गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करेगा, फ्यूज करके क्या फॉर्म करेगा, जाइगोस्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द गैमेटेंजियल कपलेशन। नेक्स्ट वन इज द स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है देखो, इट्स अ फेनोमेनन थ्रू व्हिच न्यूमरस माइन्यूट इनोन्यूक्लिएट स्पोर लाइक बॉडीज व्हिच इज कॉल्ड द स्पर्मेटिया और ट्रांसफर टू रिसेप्टिव हाइपी सेल्स। तो स्पर्मेटाइजेशन में क्या हो रहा है, एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका नाम है स्पर्मेटिया। इस स्पर्मेटिया का नेचर क्या है, द स्पर्मेटिया आर ऑलवेज न्यूमरस इन नंबर, माइन्यूट एंड यूनिन्यूक्लिएट। इट्स अ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द स्पर्मेटिया व्हिच ट्रांसफर थ्रू द रिसेप्टिव हाइपी सेल्स आर कॉल्ड द स्पर्मेटाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज द fruiting bodies. What is fruiting bodies? The sexual reproduction in fungi occurs by means of either developing oospore, either developing ascospores and basidiospore. अब ये spores क्या है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। So in case of the fungi sexual reproduction, they may be formed either by means of oospore, ascospores and basidiospore. Now these various spores produce in a distinct structure which are called fruiting body. तो ये जो स्पोर्स डेवलप होता है फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो स्पोर हो, एस्कोस्पोर्स हो या बेसिडियोस्पोर्स हो, ये जहां पे बनता है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है, उस जिस स्ट्रक्चर के अंदर ही ये स्पोर का डेवलपमेंट होता है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग द किंगडम फंजाई। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे है। ठीक है, so as we discussed earlier that the septate or non-septate characteristics which are very much important for differentiate the classification of fungi. Now on the basis of that nature, fungi are broadly classified into two separate groups, that is non-septate mycelium, that is the lower group of fungi, और एक में हम लोग किया है सेप्टेट माइसिलियम जो कि ना हायर ग्रुप ऑफ फंजाई होता है। ठीक है, अब ये लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई जो कि ना नॉन सेप्टेट है, इसके अंदर जो क्लास होता है उसका नाम होता है फर्स्ट फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस का और एक नाम होता है एल्गल फंजाई। क्यों एल्गल फंजाई होता है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइकोमाइसेटिस के अंदर भी फिर से दो सब क्लास होता है, एक होता है
मैस्टिगोमाइसेटिस और एक होता है जाइगोमाइसेटिस। ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि मैस्टिगोमाइसेटिस जो होता है वो होता है फ्लैजिलेटेड ग्रुप, मतलब गैमेट में फ्लैजिला दिखने को मिलेगा, और जाइगोमाइसेटिस में क्या होता है नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रुप, मतलब इसका गैमेट में कोई फ्लैजिला दिखने को नहीं मिलेगा। जनरली हम लोगों का सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली फाइकोमाइसेटिस, उसका 7 क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो फाइकोमाइसेटिस का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखा जाए तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तुम लोग को पता चली गया है कि उसका जो माइसेलियम होगा वो नॉन सेप्टेट होगा और ये वेरी लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई होगा। ठीक है, अभी जो सेप्टेड माइसेलियम या हायर ग्रुप ऑफ फंजाई है उसको फिर से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन इट अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक में क्या होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, और एक में क्या होता है सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। जो जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रुप को फर्दर हम लोग 2 क्लास में डिवाइड किया है। तो सेकेंड क्लास इज द एस्कोमाइसेटिस जिसका और एक नाम होता है सैक फंजाई, एंड थर्ड वन इज द बेसिडियोमाइसेटिस जिसका और एक नाम होता है क्लाव फंजाई। और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके अंदर एक ही क्लास आता है जिस क्लास का नाम होता है ड्यूटेरोमाइसेटिस जिसका और एक नाम होता है इम्परफेक्टिव फंजाई। अब ये इम्परफेक्टिव फंजाई क्यों है, जब हम लोग ड्यूटेरोमाइसेटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डिस्कस करेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसको क्यों हम लोग इम्परफेक्टिव फंजाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया, इसको तुम लोग कॉपी में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंजाई का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हाउ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑकर इन द फंजाई। सो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप इज द कैरियोगेमी, एंड लास्ट स्टेज इज द meiosis. So plasmogamy means basically plasmogamy means the fusion of 2 प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अभी प्रोटोप्लास्ट का हम लोग को पता है कि एक सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सो बेसिकली द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। अब ये कैसे होता है देखो, मान लो ये 2 सेल था। ठीक है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब जब फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है प्लाज्मोगेमी, सो प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होगा, ये जो 2 सेल अपना प्रोटोप्लाज्म से फ्यूज होगा एक दूसरे से, तो दिखने में कैसे हो जाएगा, ऐसे 2 सेल अभी फ्यूज हो गया, तो फ्यूज हो गया पर न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ, न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे इसे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, ये भी एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम था, तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी अभी हैप्लॉइड कंडीशन में ही है। सो प्लाज्मोगेमी मींस द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मींस द फ्यूजन ऑफ बोथ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों के एक सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस था ना, ये 2 न्यूक्लियस अभी एक दूसरे से फ्यूज हो गया। ठीक है, सो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियोगेमी। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, कैरियोगेमी फ्यूज हो गया, मतलब यहाँ पे एन और एन मिलके कितना हो गया, अभी ये 2n स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है ना, सो द नेक्स्ट स्टेज इज द मियोसिस। एज वी नो मियोसिस इज अ रिडक्शन डिविजन। सो रिडक्शन डिविजन मतलब क्या होगा, मियोसिस में ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर था, जो कैरियोगेमी में जो स्ट्रक्चर बना था, ये सेल अभी क्या है 2n है। ठीक है, सो आफ्टर इट अंडरगोस द मियोसिस सेल डिविजन इट विल प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड सेल। तो फाइनली जब कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद इट प्रोड्यूस 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल। तो ये होता है 3 बेसिक इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ठीक है, सो प्लाज्मोगेमी में एक स्टेज होता है जिसका नाम होता है डाइकैरियन।
या डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक सेल मतलब होता है जो प्लाज्मोगामी हो रहा है ना, प्लाज्मोगामी में क्या हो गया कि दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, पर जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट है। तो ऐसा स्टेज को हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन मतलब जो स्टेज में प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो गया पर न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ, वो जो बीच का जो टाइम है उसे कहते हैं हम लोग डाइकैरियन स्टेज। मतलब अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो वो कैरियोगामी हो जाएगा ना। सो प्लाज्मोगामी होने के बाद कैरियोगामी होने से पहले तक जो टाइम है उस पर्टिकुलर टाइमिंग को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन सेल या डाइकैरियोटिक सेल, जहां पे दोनों न्यूक्लियस इंडिविजुअली प्रेजेंट होगा बट फ्यूजन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। 3 मार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन जो होता है टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन ऑकर इन फंजाई। टाइप्स ऑफ गैमेटिक फ्यूजन ऑकर इन फंजाई क्या क्या होता है? 3 टाइप जनरली होता है। फर्स्ट वन इज द आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी के अंदर क्या होता है? इट्स अ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकली सेम। ठीक है, आइसोगैमी में क्या होता है? मान लो एक गैमेट है, ठीक है, नाउ इट फ्यूज विथ another gamete. So in case of isogamy, the fusion between the 2 gametes which are identically same, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली हो या एटॉमिकली हो, तो ऐसा कंडीशन को हम लोग कहेंगे आइसोगैमी, जिसका एग्जांपल में होता है सिंचिट्रियम। सिंचिट्रियम एक स्पीसीज है जिसमें हम लोग आइसोगैमी देखने को मिलता है। ठीक है, एनाइसोगैमी में क्या होता है? एनाइसोगैमी में both the gamete are morphologically different. मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। यहां पे क्या था? एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही सेम था, मॉर्फोलॉजिकली सेम था। पर एनाइसोगैमी में क्या हो रहा है? देखो डिफरेंस क्या है। देखो ये मान लो एक गैमेट है जिसका फ्लैजेला है, ठीक है, ये एक ऐसा गैमेट से फ्यूज हो रहा है जिसका पास फ्लैजेला है पर वो साइज में बड़ा है। ठीक है, तो मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकली वो अलग हो गया। ठीक है, तो जब मॉर्फोलॉजिकली अलग हो जाता है, जब मॉर्फोलॉजिकली वो अलग हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकली वो अलग हो गया, एनाटॉमिकली सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों के अंदर ही फ्लैजेला है, दोनों के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ही है, पर जो डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर है वो होता है साइज। सो ऐसा केस में जब फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स व्हिच आर अनआइडेंटिकल टू ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज कॉल्ड द एनाइसोगैमी, जो कि ना एलोमाइसिस में होता है, एलोमाइसिस में होता है। और लास्ट वन होता है ऊगैमी या हेटेरोगैमी। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे बोथ द गैमेट आर एनाटॉमिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट हो गया, मतलब आइसोगैमी का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया ऊगैमी या हेटेरोगैमी। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो मान लो ये एक गैमेट है जिसके पास फ्लैजेला है, ठीक है, यहाँ पे और एक गैमेट है पर इसके पास एज सच कोई फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर गैमेट और ये पर्टिकुलर गैमेट दोनों मॉर्फोलॉजिकली अलग है और एटॉमिकली अलग है। तो ऐसा 2 गैमेट का जब फ्यूजन होगा तब उस फ्यूजन को हम लोग कहेंगे ऊगैमी या हेटेरोगैमी, जिसका एग्जांपल में आता है मोनोवेलफेरिस। मोनोवेलफेरिस ये होता है इसका एग्जांपल। So these are the different types of gametic fusion. ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस करने जाएगा जो 4 क्लास हम लोग पढ़ा था फंजाई के अंदर, फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, ड्यूटेरोमाइसेटिस, ये 4 अलग अलग क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सो हम लोग बहुत शॉर्ट में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि फाइकोमाइसेटिस, फर्स्ट एज वी कॉल फाइकोमाइसेटिस इज आल्सो कॉल्ड द एल्गल फंजाई। क्यों इसे एल्गल फंजाई कहा जाता है? जनरली द नेचर ऑफ द फाइकोमाइसेटिस, द मेंबर ऑफ द
फाइकोमाइसीट्स जनरली ग्रो इन एक्वाटिक कंडीशन, एक्वाटिक कंडीशन में वो ग्रो करता है, ठीक है। जनरली फाउंड इन द डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑन द प्लांट्स एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। जनरली प्लांट के साथ इसका एक एसोसिएशन होता है, प्लांट्स मतलब जहाँ पे एल्गल बॉडी के साथ इसका एक एसोसिएशन दिखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एल्गल फंजाई। जैसे क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे कि वो एसेप्टेट के अंदर आता था, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिया हाइपी इज एसेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, asexual reproduction by means of motile and non-motile spores. Asexual reproduction में it can produce motile or non-motile spores. In sexual reproduction, the gametes are isogametes और anisogametes. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि आइसोगेमी क्या है, एनाइसोगेमी क्या है। So यहाँ पे जो sexual reproduction in Phycomycetes occur generally by means of isogametes और anisogametes. इसका एग्जाम्पल याद रखना, राइजोपस एग्जाम्पल है, म्यूकर एग्जाम्पल है, फाइटोप्टेरा एक एग्जाम्पल है। तो दीज आर द वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई। इट्स ए वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई, इट्स ए लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई जो कि ना एल्गल फंजाई नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आता है जो कि ना सेप्टेट के अंदर आएगा, वो होगा एस्कोमाइसेटिस, या इसका और एक नाम है सैक फंजाई। Generally, it's the largest class of fungi, including 35,000 species. Fungi के अंदर ये टोटल 4 क्लास है ना, उस 4 क्लास के अंदर एस्कोमाइसीट्स होता है सबसे लार्जेस्ट क्लास, which include 35,000 species. Now, in Ascomycetes, the spore produce exogenously in a sac-like structure called the asci or ascus. मतलब यहाँ पे जो स्पोर प्रोड्यूस होता है ना, जो गैमेटेंजिया हम लोग बोला था, वैसे ही स्पोर जहां पे प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है स्पोरेंजिया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मान लो जो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर डेवलप हो रहा है जनरली एक्सोजीनसली, सो स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन ए sac like structure called the asci or the ascus, within which 4 to 8 ascospores were formed. तो मतलब asci एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर डेवलप होता है, उस स्पोर का नाम होता है एस्कोस्पोर, जिसका नंबर है 4 to 8 इन नंबर। नाउ द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइकोसिट्स इज कॉल्ड द एस्कोकार्प। हम लोग फ्रूटिंग बॉडी क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। सो एस्कोमाइकोसिट्स के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो होता है एस्कोकार्प। ये याद रखना, यहाँ पे जो दो टर्म है, एक होता है एस्काई या एस्कस, ठीक है, एक हो गया एस्कोस्पोर्स, और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम हो गया एस्कोकार्प्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ बर्डिंग और बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। द नेचर ऑफ द स्पोर इज कॉल्ड द कॉनिडिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आता है बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो कि ना होता है ईस्ट का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ये साइंटिफिक नेम है, इसको इंपॉर्टेंट है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम याद रखना, सैकरोमाइसिस सेरेविसी इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट। ईस्ट का जो इंपॉर्टेंस होता है ये होता है एक ऐसा फंजाई जो कि ना है यूनिसेलुलर। जनरली हम लोग जब RH व्हाइटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो फंजाई को क्या बोला था कि फंजाई आर जनरली मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, सेप्रोफाइटिक इन नेचर, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन आ गया जो कि ना होता है ईस्ट। ईस्ट होता है एक यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट का बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जनरली ब्रेड या फर्मेंटेशन में वो हेल्प करता है क्योंकि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू से क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। सो अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा यूजेस होता है। Saccharomyces cerevisiae is the example of Ascomycetes, as it is Aspergillus, पेनिसिलियम, जिससे हम लोग पेनिसिलिन जो पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक सीक्रेट होता है, एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलियम से, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटिस और द सैक फंजाई। सो सैक फंजाई इसका नाम क्यों है, क्योंकि जो स्पोर जहां पे डेवलप हो रहा था ना, उस डेवलपमेंट जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नाम है एस्काई या एस्कस।
अब ये स्ट्रक्चर दिखने में क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एस्कोमाइसिटिस। नेक्स्ट वन इज द बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस का और एक नाम होता है क्लाव फंजाई। जनरली जो मशरूम हम लोग खाते हैं ना, मैक्सिमम एडिबल मशरूम आर अंडर द बेसिडियोमाइसिटिस। जनरली जो भी मशरूम हम लोग खाता है ना, वो बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर ही आता है। इसका और एक नाम है क्लाव फंजाई। क्लाव किस लिए, इसका शेप कैसा होता है, जनरली हम लोग देखा है कि एगारिकस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्लाव शेप, ठीक है। इस शेप में जनरली बेसिडियोमाइसिटिस का जो अंदर जो स्पीसीज होता है, जनरली उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इसलिए इसका नाम है क्लाव फंजाई। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट, इट्स अ टेरेस्ट्रियल, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इट इंक्लूड 25,000 डिफरेंट स्पीसीज। जैसे एस्कोमाइसिटिस में हम लोग क्या देखा था, 35,000, यहाँ पे हो गया 25,000। दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्लास इन फंजाई। माइसेलियम आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रैगमेंटेशन, नो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म, यहाँ पे कोई एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं हो रहा था। जबकि जब हम लोग एस्कोमाइसिटिस डिस्कस कर रहा था, एस्कोमाइसिटिस में ये जो हम लोग कॉनिडिया के बारे में बोल रहा था ना, दिस कॉनिडिया इज कॉल्ड द एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। क्वेश्चन में आएगा नेम द एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटिस, देन क्या लिखना पड़ेगा, कॉनिडिया। कॉनिडिया इज ए एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। पर बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर एज सच कोई एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ सोमेटोगमी, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजिनसली फॉर्म इन क्लाव शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसिडियम। वहां पे हम लोग क्या देखे थे, वहां पे हम लोग देखे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये होगा एंडोजिनसली, सॉरी एंडोजिनसली, एंडोजिनसली, ठीक है, यहाँ पे होगा एंडोजिनसली। तो हम लोग एस्कोमाइसिटिस के अंदर क्या देखा था, स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड द एस्काई। इन द सेम फैशन in basidiomycetes, spores will form a special structure which is called the basidium. तो वहां पे जो एस्कस टर्म आया था, ये एस्काई टर्म आया था, बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर सेम स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिडियम। पर ये बेसिडियम के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर डेवलप हो रहा है ना, वो कैसे होगा, एक्सोजिनसली, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है, एंडोजिनसली, मतलब अंदर फॉर्म हो रहा था। पर यहाँ पे क्या होगा, बेसिडियम के बाहर फॉर्म होगा सेक्सुअल स्पोर। अब ये सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर। वहां पे क्या था, एस्कोस्पोर्स। नाम से याद रखना, एस्कोमाइसिटिस है बोल के सब स्ट्रक्चर का नाम एस्को से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम बेसिडियोमाइसिटिस है, सब स्ट्रक्चर का नाम बेसी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। सो जो स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर फॉर्म हो रहा था उसका नाम हो गया बेसिडियम, जो कि ना क्लाव शेप स्ट्रक्चर है, within which basidiospore will form. बेसिडियोफॉर्म कितना फॉर्म होता है, जनरली 4 स्पोर फॉर्म होता है within the basidium. Generally 4 बेसिडियोस्पोर will form in a single basidium, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या हो जाएगा, बेसिडियोकार्प। एक कार्प जो टर्म है ना, ये कार्प टर्म यूज होता है जनरली फ्रूटिंग बॉडी के लिए। तो उसके केस में हो गया था, एस्कोमाइसिटिस के केस में हो गया था एस्कोस्कार्प, और बेसिडियोमाइसिटिस के केस में हो जाएगा बेसिडियोकार्प। तो इसका एग्जांपल में आता है एगारिकस, जो बहुत कॉमन है, ठीक है, पाक्सिनिया एंड उस्टिलागो। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल इन बेसिडियोमाइसिटिस। ये तीन छोड़ के और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तुम लोग लिख सकते हो, but these are the easy to pronunciation, easy to write, ठीक है। स्पेलिंग भी बहुत इजी है, क्योंकि साइंटिफिक नेम लिखने जा रहा है तो साइंटिफिक नेम में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसे काट दिया जाएगा। इसलिए ऐसा एग्जाम्पल को चूज करना है जिसका प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग इजी हो, ठीक है।
सो बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर एग्जांपल हो गया एगारिकस, पॉक्सिनिया या उस्टिलागो। नेक्स्ट हम लोगों का लास्ट फोर्थ क्लास आ रहा है जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसका और एक नाम है इम्परफेक्टिव फंजाई। अब ये इम्परफेक्टिव फंजाई क्यों है? क्योंकि इट वाज इम्परफेक्टिव बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बोल के अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। ओनली एसेक्सुअल और द वेजिटेटिव फेज आर नोन। ठीक है, so deuteromycetes are a type of class in fungi which are also called the imperfective because there is no sexual reproduction reported still now and the only asexual or the vegetative phase are known. Later when the linkage discovered, जब linkage discover हुआ था, मतलब उसके साथ deuteromycetes के अंदर जो भी species है उसके साथ दूसरा क्लास का species के साथ जब linkage established हुआ तब जाके हम लोगों को सेक्सुअल या परफेक्ट स्टेज को पता चला। ठीक है, सो लेटर व्हेन लिंकेज डिस्कवर्ड द सेक्सुअल और द परफेक्ट स्टेज वाज नोन, देन इट मूव टू द एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर जो भी स्पीसीज है वो स्पीसीज को बाद में हम लोग क्या किया, इधर एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर मूव कर दिया, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस के साथ एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस के बीच लिंकेज डिस्कवर हुआ था। लिंकेज मतलब सिमिलरिटीज हम लोग को मिला था। फॉर दैट पर्पस राइट नाउ वी ट्रांसफर और मूव ऑल द स्पीसीज अंडर द ड्यूटेरोमाइसिटिस इन द क्लास आइदर एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस। तो इम्परफेक्टिव फंजाई क्यों है, पूछने से बोलना पड़ेगा क्यों। इट्स बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड एंड ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द इम्परफेक्टिव फंजाई। बट आज की डेट में ऑलरेडी सेक्सुअल या परफेक्ट स्टेज हम लोग को पता चलने की वजह से हम लोग इसे मूव कर दिया इधर एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर। नेक्स्ट माइसेलियम इज ब्रांच्ड सेप्टेड, जो ऑलरेडी हम लोग देखा है। Asexual reproduction formation by means of the conidia or the sometimes it form the chlamydiospores। तो asexual जो स्पोर है, तो asexual स्पोर का नाम क्या होगा यहाँ पे, either conidia होगा नहीं तो sometimes chlamydiospore, ये हो गया asexual स्पोर। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है either parasitic या saprophytic। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना, एक होता है अल्टरनेरिया और एक होता है ट्राइकोडर्मा। These are the examples of the class that is the Deuteromycetes। तो ये पर्टिकुलर जितना डिस्कशन हुआ है हम लोग का, ये डिस्कशन से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है। एक क्वेश्चन होता है कि क्यों हम लोग फंजाई को बोलते हैं इट्स क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रादर देन प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हम लिखने जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो देखने के बाद तुम लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मुझे भेजना, तब जाके हमको पता चलेगा कि तुम लोग कितना ये वीडियो को फॉलो कर रहा है ना। सो एक क्वेश्चन है जो है डिफरेंस बिटवीन एस्कोसर्फ एंड बेसिडियोसर्फ। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना। और एक क्वेश्चन लिखना, fungi are cosmopolitan write the role of fungi in your
डेली लाइफ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के सबमिट करना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल फंजाई। फंजाई के बाद फिर हम लोग फोर्थ किंगडम में आएंगे। फोर्थ किंगडम दैट इज द प्लांटी। ठीक है, प्लांटी के बारे में हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो किंगडम 4 है ना, किंगडम 4 प्लांटी। ठीक है, और किंगडम 5 एनिमलिया। तो प्लांटी जो किंगडम है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में, और एनिमलिया को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में चैप्टर 4 में। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन, आज का लेक्चर। ये चैप्टर्स का और एक छोटा सा पोर्शन रह गया जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो होगा स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ वायरस, जो कि ना हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं कैटेगराइज किया गया था। R.H. व्हाइटेकर ने वायरस को कोई भी ग्रुप में, कोई भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बारे में छोटा सा टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आज के लिए पूरा फंजाई के ऊपर एक लेक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक किंगडम है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था वो हम लोग यहाँ पे शेयर किया है। तुम लोग उसको अच्छे से देखना और जितना हो सकता है समझ के इसको पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।